اگر ایک آدمی اتنا اچھا رد کر سکتا ہے کہ پوری دلیلیں دے کر اور باطل کو واقعی باطل ثابت کر سکتا ہے تو ہی وہ شبہ پیش کر کے رد کرے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈاؤٹ بدعتیوں کی کوئی بات پیش کیا اور اس کا جواب دینے لگا، ان کی بات زیادہ پاورفل دکھائی دیتی ہے اور اس کا جواب ڈھیلا ہوتا ہے، تو سننے والوں کو لگتا ہے نہیں ان کی بات زیادہ اچھی لگ رہی ہے، جس کا رد کر رہے ہیں وہ بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے اور یہ رد کر رہے رد مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے کوئی آدمی جس کے پاس علم کم ہے وہ اہل باطل کا رد نہ کرے، لیکن سنتا کون ہے؟ سنتا کون ہے؟ لڑنے کا شوق جب آدمی کو آ جائے تو پھر کب وہ سنتا ہے علماء کی؟ ہاں علماء سب اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، مونوپولی ہے ان کی، علماء کی مونوپولی ہے۔ اگر تو اس میدان میں آئے گا، دیکھیے چاہے وہ کوئی بھی جنگ ہو، اس میں اگر انسان کے پاس ڈیفنس کا کچھ نہیں ہے ایسا آدمی ہلاک ہوگا۔ آپ گدھے کے بھی پیچھے جا کے کھڑے رہیں گے، اگر آپ کا ڈیفنس نہیں ہے تو لات کھانی پڑے گی اس کی۔ بھائی وہ تو انسان ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ غیر حق کا داعی ہے، اس کے پاس معلومات ہے، اس سے آپ بحث کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں ذرا بات کر کے دیکھتا اس سے، دیکھیں گے صحیح کیا اس کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا باطل تیرے دل میں بیٹھ جائے اور پھر نکالنے کی کوشش کرے، نہ نکلے۔ کبھی کبھی بھی بولتی ہے نا یہ دھبا نہیں نکلے گا، یہ دھبا معلوم نہیں کس چیز کا لگا کے آیا آپ کپڑے میں، یہ نہیں نکل رہا ہے، میں نے بہت دھونے کی کوشش، ارے ایسا کیسا ہوتا؟ دھونے کی کوشش کی، اس کو لانڈری میں بھی دے کے منگایا گیا پھر بھی نہیں نکل رہا ہے، کیا لگا کے لایا؟ کہاں بیٹھے تھے آپ؟ کس مناظرے میں بیٹھا تھا تو؟ کس مجلس میں بیٹھا تھا تو؟ یہ ایسا دھبا تیرے دل پر لگ گیا کہ اب اس کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں، اتنے بھاری ہم لوگ نہیں ہیں جتنے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس کے آدھے بھی نہیں ہیں۔ انسان کا ایسٹیمیٹ اپنے بارے میں جتنا ہوتا ہے اس کی حقیقت اس سے بہت کم ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے نہیں میں پکا ہوں ایک دم، اور پکے لوگ ہی پھسلتے ہیں۔ نہیں میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا۔ نہیں میں برابر دیکھ کے چلتا، پاؤں پھسلا نا چچا، ہوتا ہے۔ نہیں میں بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، زبان پھسلتی ہے۔ کوئی آدمی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے بھائی، اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ میرا دل ایک دم کعبے کی طرح پاک ہے، اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا، نہیں ایسا۔ یہ دو سوراخ ہیں نا، ہاں یہاں سے کچھ بھی جاتا ہے اندر جا کے بیٹھ گیا، نکل باہر نہیں نکلتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے بحث و مباحثے اہل بدعت کے ساتھ نہ کرے۔ کہتے ہیں علم کلام، جدال اور مناظروں میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، وہ آدمی کرے گا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دیکھیے سانپ پکڑنا ہر آدمی کا کام ہے۔ آپ کے گھر میں سانپ نکلا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو چلاتے۔ آپ ہر آدمی کو پکڑنے آتا نہیں، گیا جا کے دم پکڑا اس کی، پلٹ کے کاٹا، مرا، زہر زبان سے منہ سے جھاگ نکلا اور سب کو کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، سب کو دیکھا، کیا کروں، جا گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، زہریلا سانپ تھا، اس نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، گھر کی عورتوں کو امپریس کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، گیا، یہ ڈپریس ہو گیا، گون، دواخانے جانے تک چھٹی۔ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں آتا اپنے کو بھائی۔ سانپ پکڑنے والے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا برابر، اس کی ٹیکٹکس ہوتی، برابر اس کو کیسے تھیلی میں لینا ہے برابر لیتا، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہاں صرف بہادری کام آتی نہیں، اس کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقے سے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ خالی بہادری بھی چاہیے، لیکن صرف بہادری سے کوئی آدمی جنگ جیتا نہیں، بہادری کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اس کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے، بلکہ سلف اپنی پوری طاقت کتاب و سنت کو گہرائی سے سمجھنے اور ان دونوں پر عمل کرنے اور ان دونوں کی طرف دعوت دینے میں صرف کرتے تھے۔ نمبر 1، 2 اور 3 کیا ہے؟ نمبر 1
फहम, नंबर 2 अमल, नंबर 3 दावत। ये सलफ करते थे। आपका तरीका यह होना चाहिए। कोई विद्यार्थी आपको मिला, चल डिबेट कर, बहस कर, कौन सही, तुम सही क्या हम सही, दरगाह पे जाना सही क्या नहीं सही। बोला देखो भाई, हम अपनी बात बताते हैं, ये हमारी बात है, ये हमारी दलीलें हैं, आप कबूल करना चाहें तो करो, नहीं तो मत करो, हम बहस नहीं करते। ये बहुत बड़ी ताकत होती है, याद रखिए। बातिल बातिल होता है, हक हक होता है, उसका असर होता है। आप ये कहें भाई बहस मुबाहिसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आप उलमा से जाके करो, लेकिन ये कैसा लगता है, कुछ जा रहा हाथ से, कस्टमर जा रहा है ऐसा लगता है। हाँ, कैसे छोड़ने का इसको। वो एंटरटेनमेंट अपना मिस होता है जो डिस्कशन और डिबेट में होता है, कि तू भी कुछ बोला, मैं भी कुछ बोला, तू भी लड़ा, मैं भी लड़ा, तो ये जो मज़ा जो है वो मज़ा नहीं मिलता ना। अपना आदमी उलमा के पास कैसा भेजना। तो आदमी क्या करता है, उसे बहस करता नहीं। सलफ का तरीका क्या है, पहला काम दीन को गहराई से समझना, 2 असल मुकल्लफ कौन है, हम हैं, उस पर हम अमल लाएं। वितर 1 है कि 3 है, बहस बहस बहस। कितने दिन हुआ वितर पढ़ रहा था, पढ़ता पाबंदी से पढ़ता। 2 कुनूत क्या है, बहस हो रही, पढ़ने आती। कुनूत लाजिम है कि नहीं, अल्लाह महदीना है कि हिदीनी है, हाथ उठाना चाहिए कि नहीं उठा। कितने दिन से तू तरावी पढ़ा, रमज़ान में कितनी पढ़ा तूने, हर रात पढ़ा। वितर हमेशा पढ़ता है। तहज्जुद 11 है क्या 12 है क्या 20 है, कितनी है। मुनाजरे का चैलेंज व्हाट्सएप के ऊपर, तो तहज्जुद पढ़ता नहीं। पहले पढ़, जिस चीज के लिए पहले पढ़ फिर लड़, है कि नहीं, साफ बात यही है। पहले पढ़ फिर लड़, तो लड़ रहा और पढ़ रहा नहीं, क्या फायदा। लिहाजा फहम, अमल और फिर क्या है इसकी दावत। आपका तरीका ये होना चाहिए कि भाई ये दीन है, ये सुनो, समझ में आया कबूल करो, नहीं आया मत करो, और ज़्यादा इसमें डाउट्स हैं उलमा से पूछो। हमारा काम तुमको बताना है, तुम मानोगे अच्छी बात है, नहीं मानते कोई बात नहीं। हुज्जत अगर तुमको मुझसे करना है, सॉरी मैं हुज्जत नहीं कर सकता भाई, मैं इतना इल्म वाला नहीं है। सबसे सेफ आदमी ये है, भाई मेरे पास उतना इल्म नहीं है, इतना मैं बता सकता हूँ, मैंने जितना सुना है, पढ़ा है, सीखा है, इससे आगे उधर जाओ। किधर, फलाने आलिम के पास जाओ, जो भी आलिम है उनसे पूछो। इसमें आदमी को क्रेडिट नहीं मिलता है डेफिनेटली, लेकिन इसमें आदमी फितने से बचता है। जो आदमी बग़ैर तैयारी के पानी में कूदता है, जिसको खुद तैरना नहीं आता है, हर आदमी की एक लिमिट होती है पानी की, कितने फीट में वो तैर सकता है, कितने गहरे पानी में वो तैर सकता है। किसी को बचाने के लिए पानी में कूदेगा, जब तुझको तैरना नहीं आता है वो भी चिल्लाएगा, तू भी चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, यही होता है अक्सर। फिर क्या हुआ, देखिए गया चैलेंज, मस्जिद के इमाम हैं, हमारे यहाँ नए इमाम आए, वो आमीन नहीं बोलते ही नहीं जोर से, और हमको भी मना किया, खुतबा दिया आमीन के खिलाफ। मैं जा रहा, अभी जुमा के बाद उनसे मिल रहा हूँ मैं उनके, ठीक है, गया वहाँ पे, उसने बताया देखो ये हदीसें भी हैं फलां किताब में, ये हदीस है फलां किताब में, ये हदीस है, और तुम्हारी हदीस है इसके बारे में ऐसा ऐसा है, क्या बोलना है तुम्हारा। अब लगा रहा फ़ोन, आलिम साहब को लगा रहा फ़ोन। अब आलिम साहब जुमा के बाद खा पी के सो गए आराम से, अब फ़ोन लगा, क्यों नहीं उठाते आलिम लोग, क्यों नहीं उठाते आलिम लोग, आलिम लोग नहीं उठा रहे फ़ोन, आलिम लोग नहीं उठा रहे, तेरा काम था ये, तो क्यों पड़ा उसमें, क्यों गया तो उधर। तो भीड़ के छत्ते में हाथ डाल के, बशैर की मक्खी की छत्ते में हाथ डाल के अब चिल्ला रहा है बचाने के लिए। अब तो मक्खियाँ काटेंगी तुझको, खूब काटेंगी। जिसको तूने छेड़ा है वो लोग तुझको छोड़ने वाले नहीं है। अब वो आलिम बिठाता होता, बैठो बैठ जाओ, जा रहे किधर भाई, मैं जरा आता है, बैठ इधर भाई, इस्तिंजा के लिए जाता, जा उसको साथ में लेके जा, साथ में लेके आ इसको, यहाँ आएगा तो बैठो, ये लो किताब पढ़ के सुनाओ हदीस। अरबी नहीं आती मेरे को। अपने नबी इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, अरब के थे, तेरे को अरबी नहीं आती, जो सुन्नत सुन्नत कर रहा है तेरे को अरबी नहीं आती, कौन सी किताब पढ़ा तू, बोले व्हाट्सएप पे पढ़ा, वेबसाइट पे पढ़ा मैंने इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ के इस्लाम की दावत दे रहा तू, अरबी नहीं आती तेरे को।
मदरसों में इंग्लिश में पढ़ाते क्या अरबी में? अरबी में। तो बोलता है ना मदीने की नमाज चाहिए हमको, कुफा की नहीं। मदीने में कौन सी इंग्लिश में नमाज होती? आप क्या करते हैं, 50 आदमी जमे हुए हैं, 50 आदमी के बीच में इसके बदन पर कपड़े रखे जाते हैं लेकिन इज्जत पूरी उतारी जाती है। वही बाकी रहता है कि कपड़े भी उतार के उसको घर पे भेजा जाए। वहाँ लुट पिट के एकदम बर्बाद होके आता है। आज के बाद यहाँ दिखना नहीं, आएगा तो यहाँ आहिस्ता आमीन बोलेगा तो, और उससे लिखा के लेते हैं सॉरी 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 सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैं जवाब नहीं दे सका, मौलवी साहब ने जो दलीलें दिए मेरे पास उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं है, और मैं मानता हूँ कि इन्होंने साबित किया कि आमीन आहिस्ता बोलनी चाहिए। अब लिखा के देते पूरे इसके दस्तखत, उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, जिसमें भी इसको आता पूरे दस्तखत लेते और बोलते अब तो जा सकता है। तो ये हाल होता है उस आदमी का जिसके पास इल्म नहीं। तो बीच में क्या करता हो, जब फंसता तब आलिम याद आता है। पहले ही अगर आलिम से बात करता, ओवर कॉन्फिडेंस, अपने को आलिम की क्या ज़रूरत है, मैंने ये चीज़ें पढ़ा, उसको मालूम रहता है। आदमी जितना कम जानता है उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है उसका। दो लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। एक वो जिसको कुछ भी मालूम नहीं, अधूरा मालूम, आधा मालूम आधा नहीं मालूम, इसका कॉन्फिडेंस बहुत फुल होता है क्योंकि वह आधा मालूम देखता है। एकदम नहीं मालूम उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो डरता है भाई अपने को मालूम नहीं। तो ये क्या भोला भाला सीधा साधा एकदम शरीफ आदमी है। दूसरा कैसा रहता है, आधा मालूम आधा नहीं मालूम। तो इस आदमी की निगाह किस पे होती है, ग्लास आधा फुल है ग्लास आधा खाली, तो ध्यान नहीं रहता उसका। तो बहुत क्या रहता है, वो यानी पॉजिटिव रहता है, बहुत एंथुजियास्टिक रहता है। तीसरा वो आदमी है जिसका ग्लास फुल रहता है एकदम, उसको मालूम रहता है, हर कोना उसको मालूम है, तो बराबर वो जानता है। उसका कॉन्फिडेंस एकदम, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। इसका कैसा है, हाफ नॉलेज हाफ इग्नोरेंस और कॉन्फिडेंस। यह आदमी फंसता है, फंसाता है, मरता है, मरवाता है, दूसरे भी इसकी वजह से मार खाते। इसके साथ जो किताबें लेके गए थे वो भी मार खाते हैं, वो मुनाजरे में थे नहीं लेकिन वो भी मार खाते हैं। क्यों, इसलिए कि इसके साथ गए वो लोग। लिहाजा याद रखिए ये अपना काम नहीं है, दीन का काम फैशन नहीं है, ये फैशन नहीं है, ये हॉबी नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। शौक आया ऑपरेशन करने का करता मैं, नहीं चलता ऐसा, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये सलफ़ का तरीक़ा नहीं है, बल्कि सलफ़ क्या करते हैं, इसको हम तफसील से इंशाल्लाह आगे समझेंगे। दीन का सही फ़हम लेना, उसके मुताबिक अमल की कोशिश करना और उसकी दूसरों को दावत देना। दावत तक ठीक है, आप उसके ऊपर हुज्जतबाजी करें, आपका फील्ड वो नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं कीजिए, नहीं। तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम समझने की कोशिश करेंगे अगले दर्स में। अक़ूलु हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।